Hello everyone, I am Suryaban Yadav and I have secured rank 27 in Civil Services Examination 2022 and today I have come with a new session जिसमें I will try to discuss how can you evaluate your own answers. So as the heading of the session says, self-assessment report. What does self-assessment report means is, how can you evaluate your own mains answers? The point to bring about this is, certain aspirants and even many of my friends requested me to evaluate their own answers, and it is very natural that I cannot evaluate every other answer, and it is also not natural that every other answers can be evaluated by some learned person. So the basic idea is that today we have tried to simplify, decode the CSE instructions for the mains and the guidelines that the CSE notification itself mentions. तो उसके बेसिस पे हमने कुछ पैरामीटर्स, कुछ चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को और सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों के पास आए हैं, ठीक है। तो एज द हेडिंग गोज, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, यू राइट योर टेस्ट, यू राइट द आंसर्स एंड यू इवेल्युएट योर ओन ऑन योर ओन, और अपने आप से आप मार्क्स दीजिए और अपने आप को जज कर सकते हो। देखिए, पहले दिक्कत ये थी कि क्वालिटी टेस्ट सीरीज नहीं थी, बट क्वालिटी टेस्ट सीरीज आ गई है मार्केट्स में, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 10 ये पेपर्स पड़े हुए हैं एंड यू कैन राइट देम ऑन योर ओन। बट हाउ डू यू नो दैट एट व्हाट लेवल आप लिख रहे हो, कैसा आपका फ्लो है, कैसा आपका कंटेंट में क्वालिटी है कि नहीं है, स्ट्रक्चर है कि नहीं है, क्वांटिटी वाइज कैसा है। तो ऑन दैट फ्रंट वी हैव मेड सम slides and made some formulas for you. So basically this is not just prepared by on my own. The point about this is, I have prepared, but I have also consulted a lot of CSE experts, the selected candidates, and also multiple times मैंने CSE instruction जो मेंस की है उसको पढ़ी है। तो उस बेसिस पे मैं आया हूँ, and I believe that largely it will help you on that front. So coming to the main CSE instructions, ये बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने CSE नोटिफिकेशन जो आती है उसमें मेंस के लिए जो जनरल गाइडलाइंस दी हैं आंसर्स लिखने के लिए, कितनों ने पढ़ी है? एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आप लोगों में से कोई भी कहता है कि नहीं पढ़ी है, या बहुत कम लोग कह रहे हैं कि हाँ मैंने पढ़ी है। द रीजन बीइंग, वी नेवर गो थ्रू दिस, वी हैव बीन थ्रू द सिलेबस बट वी हैव नेवर बीन थ्रू द गाइडलाइन दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो दिस इज द बेसिक गाइडलाइन जो मेंशन होता है। जैसे कि आप इसमें देखिए क्या लिखा है, द एग्जामिनेशन इज इंटेंड overall intellectual traits, the keywords, just read the keywords. I have highlighted it very clearly. Depth of understanding, mere range of information नहीं चाहिए, and not merely the, rather than merely the range of information in memory, ठीक है। then paper 2 to 4 यानी GS 1 to 4 की बात कर रहे हैं, will be such a well educated person without any specialized study. That means they are not asking you to do research and development and come up with some PhD thesis paper और उसके quotes and quotations, not required all that, ठीक है। In that context, we will discuss all this in a very detail in the upcoming few slides, ठीक है। Then general awareness of variety of subjects is another keyword that we need to come up with. Basic understanding, देखिए बहुत जगह लिखा basic understanding, general awareness, depth of understanding. It seems very confusing, but I will make sure that you will understand them very thoroughly. Ability to analyze, take a view on conflicting socio-economic goals, objectives and demands. The candidates must give relevant, meaningful and succinct answers. This is the general guideline that every aspirant writing mains test series must follow. तो इसको मैंने और अच्छे से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया आपके लिए, इसमें देखिएगा। तो बेसिकली हमने जो नोटिफिकेशन पढ़ा, हमने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने उसे डिवाइड कर दिया नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस में। देन वी केम अप विद व्हाट द आंसर इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड, ठीक है। जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल इश्यूज, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग हियर, देन हियर इज डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर इश्यूज, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। टेक अ व्यू, टेक अ स्टैंड, मेक श्योर दैट यू हैव अ वे फॉरवर्ड, ऑल दैट, ठीक है। फिर क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं कि जहां पे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हो, स्पेशलाइज्ड स्टडी नहीं रिक्वायर्ड हो, और ऑल रेलेवेंट इश्यूज, ठीक है। अगेन वी विल गो थ्रू देम इन डिटेल, ठीक है। मार्क्स किसके लिए आपको मिल रहे हैं, रेलेवेंट, मीनिंगफुल, सब्सिक्वेंट आंसर्स के लिए, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब इन पॉइंट्स के लिए मिलते हैं। वी विल गो थ्रू देम अगेन, ठीक है। और मार्क्स किसके लिए नहीं मिल रहे हैं या किसके लिए डिडक्शन हो सकती है, दैट इज द पेनाल्टी मार्किंग। अगर आप अनऑर्गेनाइज लिख रहे हो, इन्फॉर्मेशन मेमोरी को जस्ट बॉम्बार्ड कर रहे हो, उसके लिए तो अगेन, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टेकन सर्टेन क्राइटेरिया, दैट इज दिस व्हिच इज टेकन फ्रॉम द पीटी इंस्ट्रक्शंस। पीटी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन में, ये मैंने वहां से उठाया है। तो अगेन
आपकी जो कैरेक्टर होता है, पर्सनालिटी होती है, दैट इज नॉट जस्ट रिफ्लेक्टेड इन द पर्सनालिटी टेस्ट, बट आप मेंस में कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें भी कुछ कुछ चीजें आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप स्टैंड कैसा ले रहे हो, आपका लॉजिक क्या बोलता है, ठीक है। तो अगर उसमें बैलेंस ऑफ जजमेंट है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ जजमेंट है, दैट मीन्स यू आर अ न्यूट्रल पर्सन, यू आर अ इम्पार्शियल पर्सन। वैसे ही अगर क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमुलेशन है, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन है, दैट मीन्स यू हैव अ डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। और जितना डेप्थ होगा अंडरस्टैंडिंग में, जितना आपके आंसर्स में जो रिफ्लेक्ट हो सकता है, एक एग्जामिनर विल आल्सो परसीव योर कैरेक्टर इन द वेरी सेम वे, ठीक है। मूविंग ऑन, सो व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज ओवर हियर इज, दो सेगमेंट्स में हमने बांटा इसे, कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप लर्निंग फेज में हैं, तो यू शुड फर्स्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन अ क्वांटिटेटिव मैनर। इवैल्यूएशन जो होगा आपका क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे होगा कि ये चीजें हैं तो मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। बेसिकली आपको ये पूरे सब हेडिंग्स जो भी मैंने इसमें लिखे हैं पैरामीटर्स ऑब्जेक्टिव्स के, ठीक है, वो आपको अपने आप से थॉरोली चेक करना पड़ेगा व्हेनेवर यू राइट आंसर। लेट्स से आई हैव रिटन सम आंसर, मैंने कुछ लिखा आंसर में, ठीक है, मेरे को चेक करना है कि मैंने इंट्रोडक्शन लिखी, यस, तो 1 मार्क्स मैं अपने आप को दूंगा। कंक्लूजन लिखा, यस, तो 1 मार्क्स दे दूंगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, अगर कोई डायग्राम, फ्लो चार्ट, किसी भी टाइप की आप कुछ ऐसी चीज डाल सकते हो जो एक पिक्चर रिफ्लेक्ट होता हो, कोई थीम एड्रेस कर रहा हो, वेल एंड गुड, गिव योरसेल्फ 1 मार्क्स, कम ऑन। सब हेडिंग है और बॉडी है, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 मार्कर क्वेश्चन है तो यू मस्ट राइट एटलीस्ट 12 पॉइंट्स। द आइडिया बिहाइंड दैट इज, few friends of mine who have been consistently scoring around 420s, 430s, 440s, I ask them, एक ही चीज कहते हैं कि भर भर के पॉइंट्स लिख के आते हैं हम। और भर भर के पॉइंट्स का मतलब उनका था कि 10 मार्कर में वो 15 भी पॉइंट्स लिखते थे, बट 15 पॉइंट सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज एटलीस्ट आप 12 को टच करो। आप 12 डायरेक्टली नहीं टच कर सकते हो 10 मार्कर में, तो आप 8-9 टच कीजिए एटलीस्ट, और उसके बाद 3-4 वे फॉरवर्ड में आप ऐड करके उसको 12 कर दीजिए। देखिए हर आंसर में जरूरी नहीं है आपको 12 आए, बट आपको अपने तरफ से एफर्ट डालना है कि 12 कंप्लीट करना है। अगर आपने लेट्स से कि आपने 11 पॉइंट्स लिखे हैं तो आप अपने आप को 3 and 2.5 मार्क्स अवॉर्ड कर दीजिए, दैट मीन्स 5.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स पर पॉइंट, ठीक है। एंड ओवरऑल इंप्रेशन, मतलब कि अगर आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट, ये सब को देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको नीटनेस दिख रहा है कि नहीं पेपर में, क्लीनलीनेस दिख रहा है कि नहीं पेपर में, तो ओवरऑल जो इंप्रेशन दिखना चाहिए, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब, कि कीवर्ड जो है हाईलाइटेड है कि नहीं, की फ्रेजेस जो है अंडरलाइंड है, बॉक्स में डाले गए हैं कि नहीं, एग्जांपल्स को आपने रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल बना करके हाईलाइट किया है कि नहीं। अगर ये सब चीजें हैं आपके आंसर्स में तो अगेन आप अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। ऐसे करके आप मान लीजिए लेट से आपने कुछ स्कोर किया, लेट से आपने यहाँ पे स्कोर कर लिया 9.5 मार्क्स, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस का करिए, लेट से जो भी आए 8.5, 9.5 और सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। लेट से आपका टोटल 10 मार्कर में कुछ ऐड करके आया, 15 मार्कर का कुछ आपने ऐड किया, ठीक है, और फिर उसको आपको 0.6 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो भी मार्क्स आपका आता है तो वो आपका क्वांटिटेटिव मार्क्स है। लेट से आपने पहले क्वेश्चन को आपने जब सॉल्व किया तो आपने एक चीज देखी कि 9.5 मार्क्स, अगर मैं सिर्फ पहले क्वेश्चन की बात करूं 10 मार्कर में, तो 9.5 इंटू 0.6, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये लगभग मेरे हिसाब से हो जाएगा 5.5 के आसपास, ठीक है। एक्चुअली इट्स अराउंड 5.7, ठीक है, बट लेट्स से इट्स 5.5। फिर आप ऐसे ही सबका करोगे, ठीक है, आपको एक नंबर आ जाएगा। तो ये देखिए ये 55% हो गया, मतलब आपको मिल रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमम अराउंड 140 क्वांटिटेटिवली आपको मिल सकता है। बट आवर ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी टू ड्वेल अपॉन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। बिगनर है, चीज़ों अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, पैटर्न को जानने के लिए क्या बेसिकली चीज़ें होनी चाहिए, इसके लिए हमने ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर बनाया हुआ है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू विल इवैल्यूएट, पहले आपको ये करना है। एंड द मोमेंट यू कंप्लीट दिस, देन यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट फेज जिस पे एक्चुअली मार्क्स मिलते हैं, दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अगेन सी द पैरामीटर्स दैट वी हैव डिसाइडेड इज नॉट बेस्ड ऑन जस्ट व्हाट द अदर्स से, इट इज बेस्ड ऑन द CSE instructions. Basics and depth of understanding, overall intellectual traits, ability to analyze relevant, meaningful and succinct answers. Again we can show you, see every word is mentioned if you clearly see the basic understanding, ठीक है, ability to analyze, see, relevant, meaningful, succinct answers, ठीक है, then without any specialized study, नॉट मेरली द रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सी। तो ये सब चीजें हम अपने मन से नहीं ला रहे। CSE इंस्ट्रक्शंस आर द बेस्ट वे टू जस्ट डिकोडिफाई व्हाट द सिविल सर्विसेज वांट्स फ्रॉम एन एस्पिरेंट।
ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड, सी तो ये चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है पैरामीटर्स में. वी व्हाट वी हैव जस्ट ट्राइड इज टू मेक श्योर दैट यू आल्सो गेट टू नो व्हाट द सीएससी इंस्ट्रक्शन स्पीक्स अबाउट. मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे आपके पास 10 मार्कर क्वेश्चन आया तो दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड कि बेसिक्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग में मैक्सिमम मार्क्स जो आप अपने आप को दोगे वो 3 होगा. ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स के लिए 3 होगा 10 मार्कर में. रिलेवेंट मीनिंगफुल सब्सिक्वेंट आंसर्स के लिए 1 होगा. एबिलिटी टू एनालाइज के लिए 1 होगा. और नेगेटिव मार्किंग भी रखी है जस्ट टू डिस्करेज यू फ्रॉम राइटिंग व्हाटएवर यू नो. मेयर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो आपको पता है वो लिखिए. दिस इज नॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, जो डिमांड है क्वेश्चन का, व्हाट है तो व्हाट लिखिए, वाई है तो वाई लिखिए. आप व्हाट का वाई लिखोगे तो दैट मीन्स मेयर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर ट्राइंग टू बॉम्बार्ड. ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि अगर फैक्ट पूछ रहा है पॉवर्टी का तो आप कहीं पॉवर्टी पर्टिकुलर एक सिर्फ स्टेट का बता रहे हो, और तो अगेन जस्ट इंफॉर्मेशन है किसी स्टेट का, इट डजंट रिफ्लेक्ट द एंटायर पिक्चर ऑफ पॉवर्टी. तो पॉइंट इज यू शुड राइट इंफॉर्मेशन दैट रिफ्लेक्ट्स विद द आंसर, दैट हिट्स द कोर थीम ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए वी हैव केप्ट अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1. फिर 15 मार्कर में लाइकवाइज वी हैव केप्ट 4.5, 4.5, 4.5, 1.5 एंड -1.5. ठीक है, तो वी विल गो थ्रू देम इन ऑल डिटेल्स. एक्चुअली दिस इज द पार्ट जो आपको मार्क्स दिलाएगा यूपीएससी में. जो आप इन सब को अगर आपने टिक मार्क कर लिया, टिक बॉक्स कर लिया इन पैरामीटर्स के ऊपर, एबिलिटी टू एनालाइज, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स, वी विल गो थ्रू देम. बेसिक्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सब्सिक्वेंट आंसर. These are the parameters that will give you marks in UPSC examination. ठीक है, एंड इसके बेसिस पे हमने कुछ कुछ चीजें और इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है. विल गेट टू नो. ठीक है, अब मान लीजिए बेसिक्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आपकी. ठीक है, तो आप अपने आप को 10 मार्कर का लिख रहे हो तो आप कभी अपने आप को 3 मार्क्स नहीं दोगे इसमें. इफ यू स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ 3 मार्क्स, दैट मीन्स यू आर हैविंग एब्सोल्युटली बेस्ट नॉलेज. अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं शो करना है, मिनिमल स्टेज पे रहना है. ठीक है, मैक्सिमम जो आपको देना है मेरे हिसाब से यू मस्ट गिव 2 मैक्सिमम, इससे ऊपर जाना ही नहीं है. रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस में आप 2-3 क्वेश्चन में पूरे पेपर में आप किसी में 3 दे सकते हो, बस, इससे ज्यादा नहीं. इससे ज्यादा देने का मतलब है यू आर चीटिंग योरसेल्फ, दैट यू मस्ट अवॉइड एट एनी कॉस्ट. ठीक है, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स में भी आपको 2 से ज्यादा नहीं देना है. एबिलिटी टू एनालाइज में भी 2 से ज्यादा नहीं देना है. ठीक है, तो द ओवरऑल पॉइंट इज आप 2 दे सकते हो. ठीक है, बट इससे ज्यादा नहीं. मैं बताऊंगा इसका लॉजिक क्यों है. ठीक है, लेट्स से कि आपने 10 मार्कर लिखा है और आपने रेलेवेंट, मीनिंगफुल, सब्सिक्वेंट आंसर्स भी लिखी हैं और यहाँ पे मेयर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में 0 रखा है एंड यू गेट टोटल 7 मार्क्स. तो 10 मार्कर में 7 मार्क्स है. अगेन वी हैव अराइव्ड एट अ फॉर्मूला कि आप पूरे 20 क्वेश्चंस के लिए कर लीजिए ऐसे. ठीक है, जो भी मार्क्स है उसको ऐड कर लीजिए एंड देन यू मल्टीप्लाइड बाय 0.7. दैट इज योर स्कोर क्वालिटेटिवली एंड यू शुड कंसिडर दिस स्कोर कि आपको इतने नंबर मिल रहे हैं आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. ठीक है, तो लेट्स से कि 7 आया, लेट्स से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं कंसीडर करूं तो 7 into 0.7 इज 4.5 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 5. तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स. तो 10 मार्कर में 5 मार्क्स है. इसका मतलब जो मैक्सिमम एक बंदा अगर अच्छा से अच्छा आंसर लिखेगा तो ही और शी कैन स्कोर अराउंड 50% ऑफ द टोटल मार्क्स. दैट मीन्स 50% का मतलब है 1000 मार्क्स का जीएस होता है तो 500 मार्क्स जीएस में आ सकते हैं. And again, if you will see the toppers that they have been able to score in the previous few 5 or 6 years, तो GS में मैक्सिमम मार्क्स आया है वो 505 है, वो भी एक ही कैंडिडेट का है. उसके बाद सब 470s 480s में स्टक है, 490s में, एंड दीज आर अबाउट टॉपर्स. उसके बाद 440s 430s में है लोग. तो दैट मीन्स even with the best of best effort, what you can score is just 50% of the maximum marks in general studies. इसलिए ये 0.7 का फैक्टर है. It's something not that I have come out of blue. मैंने ऐसा भी नहीं है कि कोई लीनियर प्रोग्रामिंग या लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगा दिया है और मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू आई है. इट्स जस्ट कॉमन सेंस कि मतलब ये मुझे बेस्ट आंसर के पास 7 मिल रहा है, 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो अराउंड 4.59 आ रहा है, यानी 5 मार्क्स के आसपास आ रहा है. तो दिस इज, आई थिंक दिस एक्सरसाइज यू शुड डू विद योर आंसर्स. नाउ कमिंग टू हाउ डू यू एनालाइज कि कौन सा आंसर बेसिक एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें 2 देना चाहिए, 1.5 देना चाहिए, 1 देना चाहिए, 0 देना चाहिए, जैसा भी है. ठीक है, बिफोर दैट पार्ट 0 इज द पेनाल्टी पार्ट. पेनाल्टी पार्ट का मतलब है कि सीएससी इंस्ट्रक्शंस कुछ चीजें आपको कहती है कि अवॉइड कीजिए, तो दैट यू हैव टू एंश्योर कि यू आर नॉट वायलेटिंग द सीएससी रूल्स, बी इट ऑफ वर्ड लिमिट, बी इट ऑफ टाइम लिमिट, बी इट ऑफ राइटिंग आफ्टर द मार्जिन और वो सब ओम नमः शिवाय, ये सब जो सिंबल्स हैं ये सब भी अवॉइड करना है आपको पेपर में. जो पेनाल्टी मार्किंग है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट कर दी है कि ये सब चीजें आपको एट एनी कॉस्ट अवॉइड करनी है. कॉमन मिस्टेक्स, this is common mistakes that you must avoid.
go through them. Some of the toppers have also suffered in past few years. ठीक है, irrelevant matter in question कम आंसर बुकलेट में नहीं लिखना है. कैंडिडेट शुड नॉट राइट एनीथिंग जहाँ पे उनकी पर्सनल आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो. ठीक है, इंक में और पेंसिल में नहीं लिखनी है. ठीक है, बैड इलेजिबल हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए. इस टाइप की चीजें आप यू गो थ्रू देम. ठीक है, आवर आइडिया इज टू स्टडी अबाउट दी क्वालिटेटिव पार्ट. तो विल कम एट दैट. अब पार्ट 0 इसलिए है कि यू शुड नॉट बी नेगेटिवली पनिश्ड इन द वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सर्कमस्टांसेस. करेक्ट. तो जैसे कि अगर आपकी हैंड राइटिंग नीट है, क्लीन है, देन यू टिक मार्क कि ठीक है, इट्स लेजिबल, इट्स एवरीथिंग इज फाइन, वी कैन मूव ऑन. ग्रामेटिकल, इट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट स्टिल इफ इट इज ओकेश देन गिव अ टिक टू योरसेल्फ. पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज है तो टिक कर दीजिए. वी विल अगेन डिस्कस दिस. ठीक है, वर्ड लिमिट, स्पेस यूटिलाइजेशन है, यस ओके. टाइम मैनेजमेंट, ठीक है. अगर इनमें से कोई भी क्रॉस है, लेट्स से कि वर्ड लिमिट एंड स्पेस यूटिलाइजेशन आपका पुअर है, तो आप क्रॉस कीजिए. And keep in mind that in next test paper you have to improve upon this aspect. ठीक है. So this is what we have tried to decodify, simplify for you people. ठीक है, आपको आसानी हो समझने में. बेसिक्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स, एबिलिटी टू एनालाइज रिलेवेंट. तो वी हैव मेड एन एंटायर स्लाइड फॉर यू. ठीक है, ताकि चीजें आसानी से बढ़िया से दिखें आपको. नाउ कमिंग टू द क्रक्स ऑफ द एंटायर सेशन, बेसिक्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो बेसिक एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी तब दिखाई देगी जब आप कोर थीम को पहले ही लाइन से अगर आपने एड्रेस करना शुरू कर दिया है तो. ठीक है, आपको कीवर्ड समझना है कि क्या है कोर क्वेश्चन का, व्हाट है, व्हाई है, एलॉबरेट है, क्रिटिकली डिस्कस, जो भी है. ठीक है, और सेंट्रल थीम को एट द सेम टाइम आपको आइडेंटिफाई करना है. अब बेसिक एंड डेप्थ आपको किस किस कंटेक्स्ट में चाहिए होगा. देखिए, बेसिक जो नॉलेज है, जो भी सीएससी के मेंस की नोटिफिकेशन में सिलेबस में है, दैट इज द बेसिक पार्ट, दैट यू मस्ट नो एट एनी कॉस्ट. ठीक है, दैट यू मस्ट नो एट एनी कॉस्ट. जो भी इश्यूज है यू मस्ट नो. और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी ऐसे ही इश्यूज में चाहिए जहां पे देखो हमने एक जगह लिखा है कोर ऑफ द इश्यूज. जहां जहां होगा कोर इश्यूज, पॉवर्टी, करप्शन, फार्म क्राइसिस, ये जो है कोर इश्यूज है दैट इंडिया हैज बीन फेसिंग. तो जो जो कोर इश्यूज है उसमें डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. अब जो भी इश्यूज आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, अगेन these are all actually issues wherein you require depth and both basic. स्पेस सेक्टर का कोई क्वेश्चन आ रहा है और उसमें बोला जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर का के एनहांसमेंट के लिए, कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए ISRO has taken multiple steps. Kindly elaborate. See, on in this question you need to understand कि स्पेस सेक्टर ऐसी चीज है जो ऑलरेडी मेंशन्ड है GS3 के सिलेबस में वेरी स्पेसिफिकली. तो आपकी प्रिपरेशन अप टू मार्क होनी चाहिए, वैसा कंटेंट दिखना चाहिए. Here you cannot write a very generalistic answer कि मुझे तो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो मेंट जब आपको बहुत, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आ गया, तो आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं होगा इसमें लिखने के लिए, बट यू मस्ट हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ये क्यों आया है, क्या, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सेट ऑफ टेलीस्कोप्स, व्हाट रिवॉल्यूशन कैन इट ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस सेक्टर. इस टाइप से चीज आपको बेसिकली आपको सोचना है. बेसिक से आप जाइएगा. ठीक है, सेकेंड सेगमेंट इज, तो बेसिक थीम को आपको आइडेंटिफाई करना है. थर्ड इज बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड लिंकेज. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज आपने पढ़ा होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कि सप्लाई चेन के रिगार्डिंग. हियर इट कम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. वन. सेकंड इज वेरियस डायमेंशनल पॉइंट्स को आपको लिंक करना आना चाहिए. इंटरलिंकेज और इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज जितना दिखाई देता है, इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू हैव एन एबिलिटी टू एनालाइज. अगेन आप अपने आप को वहां पॉइंट देंगे. तो बेसिक, तो दिस इज द सेगमेंट. ठीक है, तो फॉरवर्ड लिंकेज यानी कि इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, और कंक्लूजन शुड बी ऑफ ऑप्टिमिस्टिक नेचर. इंट्रोडक्शन जो है थीम ऑफ द क्वेश्चन को हिट करना चाहिए. जो स्ट्रक्चर है दैट शुड बी बॉडी होना चाहिए, डिफरेंट सेगमेंट्स को आंसर कर रहा है. दिस इज बेसिक एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाई डिड दिस क्वेश्चन अपीयर, करंट कंटेक्स्ट में आया है या कंटेम्प्रेरी इशू है या फिर ऐसा क्या घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से सवाल आया है, तो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. अगर वो चीज आपको लग रही है कि मेंशन करने लायक है, यू मेंशन इट एंड दैट अगेन एड्स टू द पार्ट ऑफ योर मीनिंगफुल आंसर्स एंड रेलेवेंट पॉइंट. ठीक है, general awareness of variety of subjects and other dimension. Why this term variety of subject is mentioned is because अगर आप GS 1, 2, 3 उठाओगे तो there are around 12 subjects. It is that reason की variety mentioned है. That means you should know all the subjects thoroughly. At least you must be in a position कि आपको अगर इनमें से कुछ पूछा जाए तो you must at least be able to write something. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा ही नहीं, बाकी आपने सब पढ़ लिया. Again, that does not reflect that you have a
डेप्थ, बेसिक एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, आपके पास एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। अदर डायमेंशंस, that is international dimension, you can relate it in any aspect, ठीक है। that again see, जो dimension को तोड़ने की जो बात हो रही है, we will discuss in SAR 2.0. I will come up with some other formula or some other kind of, you may take it as decodification, how can you write answers, what points you need to embed in your answers कि आपका value addition हो जाए, enrichment हो जाए answers में, और reflect हो कि some very well educated mind is writing, ठीक है। तो that is SAR 2.0. अगेन वी विल रिफ्लेक्ट अपॉन इट ऑन लेटर, ठीक है, जो आएगा। एंड उसका SAR 2.0 का एक जस्ट ग्लिम्स में अगर आपको दे दूं तो दिस इज चोको चिप्स, ठीक है। आई विल डिस्कस बिफोर दैट द सेकंड पैरामीटर वाज ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, एज मेंशन्ड अगेन it's already mentioned in the syllabus, overall intellectual traits. How do you say that a person is of an intellectual mind or is an intellectual? The first parameter is he or she should write or should speak in a structured and organic manner. अगर आपके आंसर्स के स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट डायमेंशन जो है स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स योर आंसर इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, you don't have an organic thinking, you don't have an intellectual traits. ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन में you won't be able to do, बट वहाँ पे आपको अपने आप को वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देनी होगी, दैट यू शुड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ठीक है। तो दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके हर क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दिखनी चाहिए। सेकंड पार्ट इज पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, लेट्स से कि गवर्नेंस का पेपर है, उसमें आप ई गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट जैसे चीज़ों को नहीं यूज कर रहे हो, तो आप मतलब फिर आपके वो आंसर्स में वो नहीं रह जाएगा, वैल्यू नहीं रह जाएगी, मतलब ऐसा थोड़ा सा कम शाइन करेगा। इसके लिए पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स आप रट लीजिए। अगेन फॉर दैट वी आर कमिंग अप विद अ मॉड्यूल, ठीक है, वी विल लेट यू नो फॉर दैट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय मी टू लार्जर एक्सटेंट, ठीक है। थिंकर थियरी रिलेटेड, जहाँ भी एथिक्स का सवाल हो या फिर पॉलिटी के क्वेश्चन में अगर आप कोट कर सकते हो, सोशियोलॉजी के क्वेश्चन में यानी सोसाइटी के क्वेश्चन में अगर कोट कर सकते हो ब्रॉडली, तो वहाँ पे आप थिंकर एंड थियरी को थ्योरीज को कोट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ इट शुड रिफ्लेक्ट कि हाँ ये लिख सकता है, कोई भी आदमी, आम आदमी भी लिख सकता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल आदमी इंटेलेक्चुअल कब होता है, जब वो कोई थियरी से रिलेट कर रहा है, कोई थिंकर की बात कर रहा है, कोई स्ट्रक्चर ला रहा है, पेपर कीवर्ड्स यूज कर रहा है, जो पेपर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड अबव ऑल द चोको चिप्स। दिस इज बेसिकली आप अपने अगर आंसर लिख रहे हो तो आपके आंसर में कुछ चीज़ें मस्ट होनी चाहिए जो वैल्यू एडिशन रिफ्लेक्ट करे, लगे कि हाँ दिस पर्सन इज अ वेरी लर्न पर्सन, दिस पर्सन हैज एन आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट नीड्स टू बी रिटन एट व्हाट प्लेसेस, ठीक है। फॉर दैट वी हैव कम विद दिस SAR 2 प्लस फाइनल कह लो, जो कहना कह लो, ठीक है। तो 2 एस से स्कीम्स एंड SDGs हो गए। इफ पॉसिबल ट्राई टू मेंशन देम इन योर आंसर्स, ठीक है, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग काम करना है, डोंट ट्राई टू फिट मनरेगा का स्कीम इनटू सम एकदम रैंडम इंटरनेशनल रिलेशंस के थीम्स में, नॉट गोइंग टू वर्क, सो प्लीज यूज योर माइंड एज वेल इन दैट कंटेक्स्ट। सेकंड है 2A है तो एक आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइसेस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए हैं, अगर आपको याद है, पता है तो ठीक है, या फिर आर्टिकल्स कोट कीजिए, ठीक है, या जो रिसेंट कंटेक्स्ट में डिस्कशंस हो रहे हैं उसके बारे में वो कोट कीजिए जो भी पॉलिटिशियंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बट दैट शुड नॉट साउंड दैट you are some part of some political party or you are a voice of some political party. That should sound like a well educated person is speaking that thing with logic, with reason, ठीक है। Then the second is ARC report, mostly you have to quote this in paper 4 and polity paper, ठीक है। Then there is ranking and reports, जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक है, इस टाइप की चीज़ें आप कोट कर सकते हो, रिपोर्ट्स कोट कर सकते हो, नेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, जर्नल्स, जो भी समझ में आता है आप कोट कर सकते हो, दैट इज 2R। एंड देन कम्स कोर्ट जजमेंट्स एंड कमिटीज एंड कमीशंस, ठीक है। कोर्ट जजमेंट्स की एक बुकलेट आप ले लीजिएगा, मार्केट में अवेलेबल होगी, नहीं अवेलेबल होगी, मेक श्योर दैट यू हैव योर ओन कोर्ट जजमेंट्स, ठीक है, आपके पास हर सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। कमीशंस, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस, नीति आयोग, लॉ कमीशन, इन सबको अगर आप आंसर्स में साइट कर रहे हो दैट मीन्स यू हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग एंड आप एक ऑर्गेनिक थिंकर हो, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट दैट इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स में अगर ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यू गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स,
इफ दीज आर नॉट रिफ्लेक्टिंग टू लार्जर एक्सटेंट तो 1 दे दो, लग रहा है कि ठीक है एवरेज है तो 2 दे दो, 1.5 भी यू कैन कीप इट, एंड देयर इज नो नीड टू बी वेरी हार्ड एंड फास्ट दैट नहीं मैं इसमें 0.75 दूंगा, यू कैन बी लिबरल समटाइम्स, 1 दे दो 1.5 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू मेक वेरी ह्यूज चेंजेस इन योर आंसर्स, in your marks. So the third parameter is ability to analyze. ठीक है, again as mentioned, ability to analyze is mentioned very clearly hereupon. ठीक है, and it mentions that you should be in a position to take a view on conflicting socio-economic goals. See, यहाँ पे view का मतलब ये है कि एक चीज की आप way forward लिखिए अपने आंसर्स में. You must mention steps, solutions or what more can be done on that front. ठीक है, that is the view. दूसरा चीज ये है कि केस स्टडीज की क्वेश्चंस में sometimes you are being asked कि what will you do in so and so situations or equations. There and there you have to take a stand. This is the best quality of a leader, that he or she takes a stand. So they expect the person जिसको भी हायर करना चाह रहे हैं कि वो एक लीडर हो. ठीक है, एंड यू शुड बी इन अ पोजिशन कि आप समझो ऑब्जेक्टिव्स को, डिमांड्स को, क्या हो रहा है इश्यूज का. ठीक है, तो इन दैट कंटेक्स्ट ये व्यू है. ठीक है, मूविंग बैक टू एबिलिटी टू एनालाइज. अब देखिए क्वेश्चन अगर व्हाट बोल रहा है, आप वाई लिखोगे, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी पुअर एनालाइजिंग पावर. तो इसलिए आपको जस्टिस करना है जो भी इंटरोगेटिव वर्ड है. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है क्रिटिकली एनालाइज, गिव द प्रोज कॉन्स एंड स्टेप फॉरवर्ड या वे फॉरवर्ड, इस टाइप की चीजें आपको बात करनी है. ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज अगर क्वेश्चन डिस्कस बोल रहा है तो ट्राई टू डिस्कस मोर अबाउट द सेम मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन दैट द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू आस्क यू. ठीक है, आपको ब्रॉडली आपको जो पता है वो डम करोगे तो अगेन इट इज इनजस्टिस, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग राइटिंग what is required. You are just bombarding with information, you are just writing for the sake of writing. ठीक है, अवॉइड करना है चीज. सेकेंड इज एनालिसिस का पार्ट जो है. आप देखोगे इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली थोड़े कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, थोड़े से एक टाइप से एनालिटिकल पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं. रैंडम स्टैटिक फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं. तो उसका रीजन ही यही है कि एनालिसिस का पार्ट दे ऑल्सो चेक इन योर इंटरव्यू पीटी. ठीक है, second part is critical power of assimilation, clarity of thought and balance of judgment. Your answer should not reflect, I mentioned, it should not reflect that you are a speaker of some political party or some particular community which is very biased. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. बैलेंस ऑफ जजमेंट इज a critical feature of yourself, क्योंकि उसमें आपकी कैरेक्टर, पर्सनालिटी सब कुछ झलक जाएगी. क्लैरिटी ऑफ थॉट है तो आपके पास एनालिसिस की क्षमताएं ज़्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि अगर आपने जो भी लिखना चाह रहे हो अगर क्लियरली लिखोगे तो आप शायद उसी चीज़ को 2 लाइन में लिखोगे, आपको पता नहीं तो आप 4 लाइन में लिखोगे. दैट इज द मेन कंटेक्स्ट ऑफ दैट. ठीक है, वेरियस डायमेंशंस, वैरायटी एंड डेप्थ, दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग. द फंडामेंटल रीजन द वैरायटी एंड डेप्थ इज दैट देयर शुड बी बोथ हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस, और इस हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस के अंदर भी वर्टिकल डायमेंशंस होने चाहिए. दैट मीन्स आपने अगर 5 टुकड़ों में तोड़ा है किसी भी क्वेश्चन को, लेट्स से, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन. उसके अंदर भी अगर आपने 3-3, 4-4 पॉइंट्स लिखे, दैट इज द वर्टिकल डायमेंशन. तो इसलिए दैट इज द डेप्थ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. और वैरायटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि कितना ब्रॉडर स्ट्रक्चर में आप तोड़ पा रहे हो. जितना तोड़ोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा रिफ्लेक्ट होगा कि यू हैव डन द जस्टिस विद द क्वेश्चन एंड विद द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सी, ठीक है, अब एनालिसिस जो है, एनालिसिस इज very void without some data, facts or some suggestions of some very learned persons. तो अगर आपके पास जैसे कि let's say कि if I say that India has done lot of progress in terms of reducing poverty, comment. But in this question, if you just merely state the fact that by so and so committee report that India has presently 21.9% of population under poverty, that doesn't make sense, because that is again you are not analyzing with the context of 1950s में कितनी पॉवर्टी थी, 1970s में क्या थी, 1990s में, 2000 में कितनी पॉवर्टी थी, अब कितनी पॉवर्टी है. एक तो डेटा बहुत पुराना दे दो आप और उसके साथ आप कंपेयर करो. ठीक है, ब्रॉडली आपको याद नहीं होगा तो आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो 2005 में आया था उसमें से अभी तक जो भी नंबर ऑफ पीपल जो निकाले गए पॉवर्टी में से वो कोट कर सकते हो. आप कोई भी डेटा कोट करो, बट देन देयर मस्ट बी कंपैरिजन. ठीक है, तो दैट इज केस स्टडीज दिखाओ तो लगेगा कि हाँ ही और शी रिफर्स टू लॉट ऑफ अदर बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस, जो भी मतलब अच्छा एक रिफ्लेक्ट करे कि हाँ वेरी लर्न पर्सन इज राइटिंग दिस. ठीक है,
every answer must, if demanded, you must try to portray the SWOT analysis. That means the strength, weakness, opportunities and threats. ठीक है, so that is how you award yourself. Again I am repeating the same. 10 मार्कर है, 3 से ज़्यादा नहीं देना है, और 15 मार्कर है तो 4.5 में से ज़्यादा नहीं देना है. इस 4.5 में भी you must give just a 66%, 2/3, that means just 3 से ज़्यादा नहीं देना है, और इस 3 में 10 मार्कर में आपको 2 से ज़्यादा नहीं देना है. ठीक है. Now the fourth part for which there is 1 marks, relevant, meaningful and succinct answers. Succinct answer का मतलब है it should be within word limit. और within word limit का मतलब ये नहीं है कि अगर 150 वर्ड बोला गया तो you should stick to that. You can expand it as well, but that doesn't mean that you will make your answer very clingy, handwriting आपकी एकदम डिग्रेड हो जाएगी. ठीक है, ये सब नहीं करना है. और सक्सिंक्ट वर्ड लिमिट इसलिए भी बोला जाता है कि एक एवरेज ह्यूमन स्पीड जो होगी, अगर आपकी 4 पेज पर मिनट आप लिख रहे हो, सॉरी एक पेज अगर आप 4 मिनट में लिख रहे हो, तो यू हैव टू राइट ऑल द पेजेस. ठीक है, अगर इफ यू आर राइटिंग 6 minutes, you are taking 6 minutes to write 1 page, definitely you will compromise somewhere. Therefore you have to be succinct with try to write within the word limits. Time limit, again, if you give 10 minutes to a 10 marker in the starting 5-7 questions, then you will then your rest of the answers at the end will suffer in terms of quality and in terms of quantity as well. तो इसलिए ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है. दिस इज द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल. अगर आप बकवास करोगे, फालतू बातें उसमें लिखोगे जो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, यू आर बाउंड टू गेट नेगेटिव मार्क्स फॉर दैट. ठीक है, एंड अ नेगेटिव इंप्रेशन एज वेल. इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए आंसर. स्टैंडर्ड पॉपुलर फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए. स्टैंडर्ड पॉपुलर का मतलब ये है कि अगर कोई घटना हुई है किसी गांव में, तो आप उसमें उस कैरेक्टर को इतना मतलब 4-5 लाइन में नहीं दिखाना है. ठीक है, इनफैक्ट वो आंसर भी नहीं, एग्जाम्पल भी नहीं कोट करना, अनलेस इट्स ऑफ अ नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, जो सबको पता हो. हर कोई न्यूज़पेपर नहीं रीड कर रहा होता है. आपको ब्रॉडली इतना ध्यान रखना है कि मैं जो भी लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो एक आम आदमी को भी पता हो. अगर आम आदमी को भी पता है और एक थोड़ा सा जो समझदार है उसको भी पता है, देन यू मस्ट राइट इट. ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो एग्जांपल है बहुत बेस्ट नहीं है, बट इट्स ऑफ वेरी स्मॉल नेचर, तो आप उस एक को बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश कीजिए. एग्जांपल में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है कि मुझे 4-4 लाइन का लिखना है. 1 लाइन या हाफ लाइन, दैट्स इट. नो नीड टू एलैबोरेट मोर ऑन दैट. ठीक है, मीनिंगफुल आंसर्स तब होते हैं जब आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिंक करते हो, एज सेड. ठीक है, बॉडी शुड बी इन कोहेरेंस विद व्हाट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज, एंड करंट अफेयर्स से लिंकेज अगर हो जाए तो मजा आ जाए. ठीक है, तो यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि करंट अफेयर्स कुछ है कंटेक्स्ट, अगर कुछ नहीं है तो ठीक है तो लिख दीजिए. ठीक है, और डायरेक्ट लिंकेज विद सेंट्रल थीम तो होनी चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव मार्किंग. एक है कि नेगेटिव मार्किंग. ये किस लिए नेगेटिव मार्किंग आपको अपने आप को देना है? जब आप ऑर्गेनिक फॉर्म में न लिखो, सेंट्रल थीम को एड्रेस न करो. दिस इज बेसिकली डिसइंसेंटिव टू राइट रॉन्ग आंसर्स और पुअर आंसर्स. ठीक है, डोंट टेक इट टू योर हार्ट. ठीक है, टेक इट ओनली व्हेन यू आर सफरिंग टू मच, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस एज वेल. ठीक है, बट टेक दिस वेरी सीरियसली. इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखने हैं आपको. ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का ज्ञान लिखोगे कोई मतलब नहीं है. बॉम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखने हैं. ठीक है, कोई भी जो आपको पता है वो लिख दो बिना ऑर्गेनाइज किए, बिना कुछ लिखे. तो एग्जामिनर माइट फाइंड डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ रीडिंग योर आंसर. और जहां डिफिकल्टी आ रही है मतलब है कि फ्लो अच्छा नहीं है, मतलब आपका कंटेंट अच्छा नहीं. एग्जामिनर इज नॉट लाइकिंग यू. इसका मतलब ही विल नॉट ट्राई टू रीड, ही विल जस्ट ट्राई टू स्किप. अरे इसको तो आता नहीं, मेरे को क्या, मेरे को तो 10 मिनट में कॉपी वैलिड करनी. तो डोंट डू दैट. ठीक है, ट्राई टू बी डू जस्टिस विद द क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, नो नीड ऑफ एनी स्पेशलाइज स्टडी. दैट सिंपली मीन्स कि ऑप्शनल्स का ऑनर्स डिग्री होना चाहिए. ऑनर्स डिग्री का मतलब है स्लाइटली एट अ हायर लेवल्स देन बैचलर्स एंड लोअर लेवल्स देन मास्टर्स. ठीक है, relevance for a career in civil services, that means you should write an answer that has a relevance with regard to civil services. ठीक है, उसमें करिए. That's all about the session. I have tried to discuss at length and breadth. ठीक है, now I have 2 questions for you. These are 2 questions. ठीक है, reforming the government delivery system through the direct benefit transfer scheme is a progressive step, but it has limitations too. Comment. देखिए, आपको ये आंसर लिखना है अपने एंड से, एंड आपको उसी पैरामीटर्स पे जज करना है. मैं 1-2 आंसर्स उठाऊंगा किसी का जो भी पोस्ट करेगा कमेंट में कहीं पे भी. ठीक है, इफ आई गेट देम देन आई विल ट्राई टू इवैल्यूएट इन वेरी कॉमन सेंस. ठीक है, मैं कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं यूज करूंगा, और मैं उसे उसी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स में फिट करूंगा. ठीक है, ट्राई टू राइट दिस आंसर. ठीक है, पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी दिस. नेक्स्ट इज this question. These are all previous years question. एक 10 मार्कर कर लेंगे, एक 15 मार्कर. This is 15 मार्कर. The previous one was of 10 मार्कर.
ठीक है. The right of children to free and compulsory education act 2009 remains inadequate in promoting an incentive based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyze, see the keyword here is analyze, do the justice with this keyword. And in the previous question, if you the keyword is comment, ठीक है. Try to answer these questions on the basis of previously what we have spoken so far. ठीक है. You might be having the best of best content, but उसको आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक फॉर्म में लेके आइए. जिस स्ट्रक्चर में हमने सोचा है कि आप लिखोगे, अगर उसे फॉलो करते हो, देन आई थिंक यू आर ऑन राइट पाथ. यू मस्ट बी ऑन राइट पाथ. आपको ऐसा सोचना नहीं, आपको सेल्फ वो नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. And in the next session I will come up with some paper specific keywords, also SAR 2.0, wherein we have tried to decode और ज़्यादा करके हमने लिबरलाइज करने की कोशिश की है in terms of कि बहुत सारे जो डायमेंशंस कैसे बनाना है, डायमेंशंस कैसे एग्जाम में जनरेट करे, डायग्राम कैसे जनरेट करे on the spot, that all kind of thing. To some extent it might help you and it will help you for sure. Thank you everyone, all the best for the exam.